Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing good in the midst of COVID-19. This is Memuna Noor, course instructor of Modern Trends in Miniature Painting. Today I have a topic is application of marbling plus gold and silver leaf and pardakht in theme based miniature painting. As far as concerned about marbling, as I told you in very detail about marbling and gold silver leaf. Now we will discuss about application of marbling with the amalgamation of gold and silver leaf and pardakht in theme based paintings. Okay, first we will discuss what is marbling. Just review kinds of marbling, marbling in miniature, what is pardakht, theme based marbling, gold and silver leaf plus pardakht in miniature painting. These are basic decoration purpose. Basically we are using these things, these all components for decoration of miniature painting, right? So first we will discuss what is marbling. As I told you in last lecture, marbling is the process of floating fabric paints on the surface of a thick cellulose solution called size, somewhat like oil on water. जिस जो भी ग्रीसी लुक देगा ना, दैट इज़ कॉल्ड साइज, जिसमें थिक मटेरियल यूज़ हुआ होगा और वो ग्रिप करेगा पेपर के साथ कलर. द फ्लोटिंग पेंट्स आर स्वर्ल्ड इनटू पैटर्न्स. उसको पैटर्न में डिफरेंट जो है वो पेपर पे फ्लो लाने के लिए हम बेसिकली जो वाटर होता है उसमें हमने जो है वो पैटर्न क्रिएट करना है. देन यू कैप्चर योर डिज़ाइन बाय लेइंग a treated piece of fabric or paper down on top of the paint to transfer these swirls to the fabric. It is that easy, not too much difficult. As we did in last semester marbling, in a small tray we just put water and then drop of different ink or color, whatever you want you can use, and start doing design. When you make sure this is design is perfect for your paper or fabric for the surface, you can use by your own choice. तो उस पर ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली जो है ना हमें एक पैटर्न चाहिए जिसको हमने उस पर पेपर में कन्वर्ट करना है या फैब्रिक पे. When most crafters think of marbling, they think of the fancy end papers in old books. जो पुरानी बुक्स हैं, अगर अब्दुर्रहमान चुगताई की अगर हम बुक देखें, हमारे पास लाइब्रेरी में भी है, उस पे जो मार्बलिंग हुई हुई है वो बेसिकली जो है वो क्राफ्टर्स ने जो बनाई हुई है वो ओल्ड बुक्स जो है वो सारी उन पे जो है वो मैनुअली क्राफ्टिंग होती थी. उसके बाद अब तो हम फोटोकॉपी के साथ भी इमेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं, डिजिटल भी आ गया है, लेकिन जो मैनुअल मार्बलिंग है वो अभी तक जो है वो कायमो दायम है. बट देयर इज़ सो मच मोर यू कैन डू विद मार्बलिंग एंड ऑल यू नीड टू गेट स्टार्टेड इन आर डिज़ायर टू प्ले. बेसिकली ये एक प्ले है मार्बलिंग कलर्स के साथ जो आप करते जाएंगे, खेलते जाएंगे, सीखते जाएंगे. नाउ जैक्वार्ड has come up with a revolutionary new marbling paint that takes all the paint out of marbling. जैक्वार्ड जो है वो अब नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जो स्पेशली मार्बलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट? सो काइंड्स ऑफ मार्बलिंग: एक्रेलिक पेंट मार्बलिंग, पेपर मार्बलिंग, वाटर मार्बलिंग. सो एक्रेलिक marbling. Acrylic marbling is easy to handle and based on your creative skills. For this technique, you need thickened water base that your paint designs will float on top of. For this, we need a thick solution. बहुत ज़्यादा थिन में नहीं जाएगा, थिक सोल्यूशन हमें चाहिए. द बेस कंसिस्ट ऑफ 2 इंग्रेडिएंट्स, वाटर एंड कॉर्न स्टार्च. जो माया जो कल्फ हम यूज़ करते हैं ना बेसिकली वो हमें इसके लिए चाहिए. 3 cups ऑफ वाटर ऑन द स्टव एंड ब्रिंगिंग टू आ बॉयल. 3 कप पानी चूल्हे पे रखना है और उसको एक बॉयल करना है. वाइल द वाटर इज़ कमिंग टू अ बॉयल, जब वो बॉयल हो जाता है, मिक्स 2 tablespoon ऑफ कॉर्न स्टार्च विद
क्वार्टर कप ऑफ कोल्ड वाटर मिक्सिंग टू रिमूव ऑल द क्लम्प्स। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है पानी में स्टार्च को, और उसके बाद जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर उसको जो है वो पोरिंग स्टेज में लाना है। वंस द वाटर ऑन द स्टोव इज बॉइलिंग, pour in cornstarch water mixture and mix it very well. Stir frequently for about 3 minutes. 3 मिनट्स के लिए उसको जो है वो अच्छी तरह आपने पकाना है। उसके बाद हमारे पास एक क्लियर वो नज़र आ जाएगा। After 3 minutes, turn off heat and let the mixture rest until cooled. जब तक कि ठंडा ना हो जाए उसको रख दें। You want to make sure that the mixture has fully cooled down before starting to marble by adding acrylic colors. एक्रेलिक कलर यूज़ करने से पहले जो है हमने उस जो हमारा मिक्सचर है उसको ठंडा करना है। वी कैन अप्लाई दिस मार्बलिंग ऑन ऑल मीडियम्स, इधर इट्स फर्नीचर कैनवस और एनी अदर सरफेस। इसको किसी भी सरफेस पे जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं कॉर्नस्टार्च की मदद से। पेपर मार्बलिंग। पेपर मार्बलिंग इज़ अ मेथड ऑफ aqueous surface design which can produce patterns similar to smooth marble or other kinds of stone. The patterns are the result of color floated on either plain water or a viscous solution known as size, जो हमने लास्ट बात की है जिसमें थिक मटेरियल जो है थिक हमें मिक्सचर चाहिए होता है उसको एज ए साइज हम कंसिडर करते हैं। एंड देन केयरफुली ट्रांसफर टू एन एब्जॉर्बेंट सरफेस सच एज पेपर और फैब्रिक। जो भी हमें सरफेस रिक्वायर्ड है फैब्रिक पे करना है या पेपर पे करना है। थ्रू सेवरल सेंचुरीज पीपल हैव अप्लाइड मार्बल मटेरियल्स टू अ वैरायटी ऑफ सरफेसेस। इन सारी अगर पुरानी सदियों की बात करें तब भी जो है वो मार्बलिंग मटेरियल जो है वो यूज़ होता रहा है। और अब तो वैसे भी इतनी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हम किसी भी तरीके से रेवोल्यूशनरी मार्बलिंग क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन इम्प्लाइड as a writing surface for calligraphy and specially book covers and papers in book binding and stationery. Part of its appeal is that each print is a unique monotype. आप ये देखेंगे कि अगर हम बुक बाइंडिंग करवाते हैं तो उसका फर्स्ट पेज या लास्ट पेज जो है वो कैलीग्राफी मेंशन होती है या मार्बलिंग शीट स्पेशल लगाई जाती है उसको कवर करने के लिए और एक अच्छी लुक देने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। सी स्टूडेंट्स, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ पेपर मार्बलिंग। यू कैन सी उसके ऊपर राइटिंग की हुई है, सिंपल शीट भी है और ऊपर जो है वो ट्रे में जो है वो बताया गया है कि किस तरह से हम ड्रॉप्स के साथ कलर डाल के टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, सी हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो तब भी जो है वो पुराने ज़माने में भी जो है ट्रे और ये सारा मटेरियल तब भी अवेलेबल होता था और लोग बड़े बड़े स्टूडियोज़ में मार्बलिंग शीट पे काम करते थे और पेपर भी इवन खुद बनाया करते थे। हैंडमेड पेपर्स जो कि अभी भी अवेलेबल हैं, लोग पहले खुद क्रिएट करते थे ये सारी चीज़ें। वाटर मार्बलिंग। This dye is so easy. Fill a large plastic tub or container with water. It's best if the container is big enough that you can dip a sheet of paper into the top without having to fold or bend it at all. Spray 2 or 4 colors of paint into the water in quick rotation. See students, these are images here. Step by step you can see. The paint will rest on the surface of the water. Keep going till you have a good film of paint on top of the water. कलर जब हमने उस पर पानी पे गिरा दिया तो कुछ देर के लिए जो है वो सरफेस पे रहेगा, हमने उसी को पिक करना है। वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस टेक्निक ऑन सम टेराकोटा पोट्स और फैब्रिक और एनी थिंग यू वॉन्ट टू प्रिंट योर कलर्स। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ये हमने पेपर मार्बलिंग जो है वो हमने पेपर पे करनी है। वाटर मार्बलिंग जो है वो हम डिफरेंट जो हमारे टेराकोटा पॉट्स हैं या मिट्टी के जो हैं डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं मार्केट में, पोट्री बेसिकली कहा जाता है उसको। वी कैन अप्लाई दीज मार्बल टेक्निक्स ऑन दो सरफेसेस एज वेल। टेराकोटा की कोई भी कर सकते हैं, मार्बलिंग इवन स्टोन्स पे हो सकती है। इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना यूज़ करते हैं, कितने तरीक़ों से यूज़ करते हैं, राइट। सो हिस्ट्री ऑफ मार्बलिंग इन मिनिएचर।
A miniature or a painting within an illuminated book or manuscript is one of the most popular forms of traditional Turkish art that has its roots in the Ottoman Empire. हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो मिनिएचर पेंटिंग का एलुमिनेशन बुक मैन्यूस्क्रिप्ट पे काम करना कोई नई बात नहीं है. ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल टर्किश आर्ट इज इलिस्ट्रेशन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट टू क्रिएट अ मैन्यूस्क्रिप्ट. ठीक है. और ऑटोमन एम्पायर जो है उस्मानिया दौर में भी ये काम जो है वो स्टार्टिंग से चलता रहा है. हाउएवर मिनिएचर्स आर आल्सो लिंक्ड टू द पर्शियन मिनिएचर ट्रेडिशन एज वेल एज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम चाइनीज़ आर्ट. ताहम अगर देखा जाए तो मिनिएचर्स का ताल्लुक पर्शियन से फिर चाइनीज़ आर्ट के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड हमेशा से रहे हैं. ड्यूरिंग दी Ottoman era, the studios where artists work on this unique visual style were called Naqashians, as miniatures were called Nakish in Ottoman Turkish. जो कि मैंने दूसरे लेक्चर में भी लास्ट लेक्चर में भी आप लोग को बताया था कि ऑटोमन जो उस्मानिया दौर था उसमें स्टूडियोज़ में बड़े बड़े आर्टिस्ट जो काम करते थे वो बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते थे और उसमें उनका यूनिक डिफरेंट विजुअल स्टाइल था जिनको और उन स्टाइल में काम करने वालों को नकाशियंस कहा जाता था. और स्टूडियो जो था ना इटसेल्फ जहाँ मिनिएचर का काम किया जाता था वो उस्मानिया और टर्किश दौर का ही कंसिडर किया जाता है. ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुलेमान ऑफ द मैग्निफिसेंट एंड सलीम टू मिनिएचर्स लिव्ड आउट देयर गोल्डन एज विद नक्काश उस्मान among one of the most important painters during this period. जी सुलेमानिया दौर में और सलीम टू के दौर में जो है मिनिएचर गोल्डन एज में था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे इसमें और इस पेंटर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी इनके दौर में. और इनके दौर में बहुत कमाल का काम हुआ था क्योंकि इसमें मार्बलिंग यूज़ हुई थी, पर्दाख्त पे काम हुआ था, गोल्ड और सिल्वर लीफ भी इसमें यूज़ किए जाते थे. राइट. मिनिएचर्स वर कंपोज्ड ऑफ बोल्ड कलर्स सच एज ब्राइट रेड, ग्रीन एंड स्कारलेट विच वर मेड फ्रॉम ग्राउंड पाउडर पिगमेंट्स मिक्सड विद एग वाइट और डायल्यूटेड गम अरेबिक, जिसमें गम अरेबिक यूज़ की जाती थी, एग वाइट यूज़ किया जाता था एज एन एडहेंसिव और इसमें जो पिगमेंट्स कलर थे वो पाउडर फॉर्म में उनको मिक्स करके तो कलर्स खुद से बनाए जाते थे. द सीन्स डिपिक्टेड इन द आर्ट वर्क्स ऑफन इंक्लूडेड द कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स closely following the context of the book they were depicting. अच्छा जी, जो सीन्स क्रिएट किए जाते थे बेसिकली वो क्या थे, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड थे जो कि बुक में अगर कोई स्टोरी लिखी हुई है उसको इलस्ट्रेट कर रहे थे बाय द इमेज नॉन एज अब्रू. मार्बलिंग को जो है वो अब्रू के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि टर्किश में इसको अब्रू कहा जाता है. मार्बलिंग इज़ बिलीव टू हैव बीन इन्वेंटेड इन 13th century तुर्किस्तान एंड हैज़ बीन प्रेजेंटेड in China, India, Persia and Anatolia. During the Seljuk and Ottoman empires, marbling was used to decorate books as well as official decrees and documents. सल्जूक और उस्मानिया दौर में ऑब्वियसली इसको जो है वो बहुत अहमियत हासिल थी क्योंकि ये किताबों की डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता था, प्लस उनके जो हैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जो है वो इसको बहुत अप्रिसिएशन हासिल थी और बहुत काम किया जाता था इस पर भी. ड्यूरिंग इट्स हेडे न्यू फॉर्म्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्बलिंग वर परफेक्टेड एंड टर्की बिकेम द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म up until the 1920s when marbler workshops were a common sight in Istanbul's Bezit district. The art form of marbling is defined by the creation of colorful patterns through the sprinkling and meticulous brushing of color on a pan of water with oil. The patterns are then transferred to paper with a beautiful creation that are
different every time. एक चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्बलिंग अगर हम रेपिटेटिवली करेंगे तो हमें एक जैसा रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलेगा. अगर हम सेम कलर्स डाल रहे हैं, सेम डिज़ाइन बना रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और हर दफ़ा नया स्टाइल मिलेगा और वो पहले से ज़्यादा अच्छा होगा. ये चीज़. दूसरा, अगर मार्बलिंग जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें अगर देखा जाए तो उसमें इस्तंबुल के जो आर्टिस्ट हैं ना वो बहुत ज़्यादा इस पे काम कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट पैटर्न्स पे काम किया हुआ है. कलरफुल पैटर्न्स पे, ऑयल कलर्स के साथ, डिफरेंट पिगमेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट टोन्स यूज़ करते हुए उन्होंने काम किया है. और अगर आजकल के दौर में टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो टर्की जो था वो सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ट के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहा है. टर्किश एब्रू और मार्बलिंग वो अभी तक जो है वो लोगों के माइंड में है और लोग उसको कॉपी करते हैं. ऑलराइट, सी स्टूडेंट्स, डिफरेंट अच्छा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वहाँ मार्बलिंग यूज़ करनी है या वहाँ यूज़ करनी है. मार्बलिंग के डिफरेंट पोर्शंस जब मार्बलिंग पेपर पे कन्वर्ट कर दी जाती है उसके लिए उसके बाद उसको डिफरेंट पैटर्न्स में यूज़ किया जाता है. समटाइम्स फॉर बॉर्डर दे कैन यूज़, इट्स अप टू यू कि वो किस तरह से इसको करते हैं यूज़. बॉर्डर के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसको बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है. कहीं जहाँ पे हमने राइटिंग करनी है, टेक्स्ट जहाँ पे हमने कंपोज करना है लेआउट में, हम वहाँ भी मार्बलिंग पेस्ट करके उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं. क्लियर? सी, व्हाट इज़ परदाख्त? Minute repetitive brush strokes render delicate figures in a painstaking techniques called pardacht, a kind of linear pointillism. uh, I told you in some lectures about stippling and pardacht. Pardacht basically जो है वो oldest form है स्टिपलिंग की. स्टिपलिंग अब तो लेटेस्ट है और उससे लेटेस्ट जो है वो अब आया पॉइंटलिज्म. दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो पॉइंटलिज्म जो है वो कलर्ड में किया कर दिया जाता है और स्टिपलिंग को जो है वो ब्लैक एंड वाइट और स्टोन में लिया गया है. और बर्दाश्त जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे एज far as concerned about the history of miniature painting, Bardakh is very important, because we can use, still we can use it in color tones, right, with the smallest details and minutest details of brush strokes. It's a far cry from the drips and splashes tossed about by the easel painters in the studio next door. See students, these are some images जिसमें स्टिपलिंग जो है वो यूज़ की गई है और बारीक बारीक जो है वो डिटेल निकाली गई है. If you can see it closely. Now we will come forward to how to add marbling, gold and silver leaf and pardacht in miniature painting. अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने एक मिनिएचर पेंटिंग निकालनी है और वो भी थीम बेस्ड. Miniature painting is all about giving a complete view of your image. It is always based on your theme and the thing which you are trying to show in your painting. Moreover, it is more like creating old idea into new illustrations. Okay, miniature painting basically क्या है? A complete idea है of imagination of your thinking which is based on your theme, and we are trying to show and represent in our painting by to pick an old idea and perform it with some new ideas, some aesthetic skills as well. Okay, miniature painting is always kind a storyboard who express their story with colors and elaborate their theme with the help of compact artwork and new variations, and you can use all of above techniques in your painting. अच्छा, अब स्टोरी बोर्ड के लिए अगर हम बात करते हैं, वी जस्ट नीड स्टोरी, कलर्स. स्टोरी बोर्ड क्या होगा जिसमें हम सबसे पहले लेआउट सोचेंगे कि हमने लेआउट में क्या करना है.
स्टोरी में हमारे जहन में होगा कि अगर हमने 2 फिगर्स दिखानी है तो वो क्या करते हुए दिखानी है। क्लियर। उसके बाद हम कलर स्कीमिंग की तरफ आएंगे और फिर जनरेट करेंगे एक थीम कॉम्पैक्ट आर्ट वर्क के लिए और उसमें वेरिएशंस डालेंगे डिफरेंट टेक्निक्स की। यू कैन मेक योर मिनिएचर अकॉर्डिंग टू योर थीम बाय यूजिंग परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन एंड स्टोरी। अब अगर राइट साइड पे जो हमारे पास इमेज है पोर्ट्रेट सी, जिसमें हम ज्वेलरी देखें ब्यूटीफुली एंड इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग माइन्यूटेस्ट डिटेल्स अच्छे से ट्रीट किया गया है इसको। मोर पॉइंट्स आर हियर। लीफिंग एंड परदाख्त आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड miniature techniques which is followed by almost all of the artists। अच्छा, लीफिंग के साथ परदाख्त मिनिएचर का बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है, जिसको काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने जो है मिनिएचर आर्टिस्ट ने इसको फॉलो किया है। मार्बलिंग इन मिनिएचर थीम्ड बेस्ड पेंटिंग help you to give a perfect texture to your story with keeping an eye on your story and color scheme। ओके स्टूडेंट्स, मार्बलिंग अगर मिनिएचर में थीम बेस्ड पेंटिंग में हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक ख़ास पर्पज़ होगा। एक तो टेक्सचर क्रिएट कर रहा होगा और आपकी स्टोरी को स्पेस दे रहा होगा, प्लस सपोर्ट कर रहा होगा। यू कैन यूज़ ऑल्सो these techniques in a single painting to make it more creative by giving layers of colors, marbling, leafing and pardakht, and can make your painting according to modern theme। Students, have you got my point? What I want to say, application of marbling plus pardakht और प्लस गोल्ड और सिल्वर लीफ, इन तीनों के एमल्गमेशन से एक पेंटिंग बननी चाहिए। क्लियर, जिसमें ये सारे इमेजेस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने कवर अप करनी है। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मार्बलिंग एंड परदाख्त। यू कैन सी, आप कोई भी इमेज ले लें उसको अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कोई ओल्ड आइडिया पिक करके मुगल्स की कोई मिनिएचर पेंटिंग लेके हम उस पर भी काम कर सकते हैं। पर्शियन की कोई लेके हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है कि हम किस तरह से उसको अप्लाई कर रहे हैं। द ओल्ड आइडिया with the conception of new color scheming plus application of new techniques, right? See students, this is camel beautifully decorated, बहुत खूबसूरत है, जिसमें जो है वो तीनों चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। परदाख्त भी है, मार्बलिंग का भी कहीं उसमें दिया गया है और तीसरा लीफिंग वो भी इसमें नज़र आ रही है हमें। ऑल राइट, सी स्टूडेंट्स, सम मोर इमेजेस आर हियर। यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ इमेज, एनी टाइप ऑफ पेंटिंग इफ़ यू वांट टू क्रिएट बाय योर ओन चॉइस। यू डोंट वांट टू पिक एनी ओल्ड पिक्चर और एनी ओल्ड पेंटिंग। यू कैन यूज़ एंड थिंक बाय योर ओन चॉइस, ठीक है। और आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को, टेक्निक को एक अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव वे में। चुगताई अगर आर्ट आपको पसंद है, चुगताई का कोई अब्दुर्रहमान चुगताई की कोई पेंटिंग लेके उसको नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं विद द अमेलगमेशन ऑफ 3 थिंग्स, मार्बलिंग प्लस गोल्ड और सिल्वर लीफ एंड परदाख्त। इन तीनों की अमेलगमेशन से एक थीम बेस्ड पेंटिंग आपने क्रिएट करनी है, जो कि स्टिल लाइफ भी हो सकती है, कोई आर्किटेक्चर भी हो सकता है, कोई कंसेप्चुअल भी पेंटिंग हो सकती है जिसको हम कर सकते हैं। हाँ, आर्किटेक्चर में जैसे ये हमारे पास है ब्यूटीफुली ट्रीटेड, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गुंबद को और बाकी सारी चीज़ों को, डोम को देखें, बहुत अच्छे तरीके से किया गया, लेकिन कोई वो पुराना कॉन्सेप्ट नहीं नज़र आ रहा। एक अच्छा कंटेम्प्रेरी आर्ट, मिनिएचर आर्ट नज़र आ रहा है जिसमें ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? All right, I think this is all clear to you। Just you need to think about whatever you want to do, just pick one thing। कंफ्यूज नहीं होना बहुत सारी चीज़ों को लेके। अगर फिगरेटिव काम आप नहीं कर सकते हो, यू थिंक यू आर वीक इन फिगरेटिव ड्राइंग और फिगरेटिव वर्क, यू कैन चूज़
still life, architecture, or any other image. You can copy it on Wesley and then start working on it with your own aesthetic sense plus skill. इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आपने कुछ नया क्रिएट करना है. All right, hope so. I am quite successful to guide you through this lecture. In case of any query, any questions, you can ask me, you can text me on Google Classroom. I will guide you anytime. So take care. Have a good day. Allah Hafiz.